بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں محمد زاہد محمود، لیکچرر فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹ سائنسز، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فزیکل ایجوکیشن ود زاہد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ہم اسپورٹس کی انجریز پہ بات کر چکے ہیں۔ وہ ایک جنرل ڈسکشن تھی اسپورٹس کی انجریز، ان کی پریکاشن کے حوالے سے، اور آج سے ہم ان تمام انجریز کو ون بائی ون الگ الگ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے مسل کریمپس، اس کے کازز، سائنس اور اس کے پریکاشنری میجرز، کہ کس طرح ہم ان کی علامات جان سکتے ہیں اور ان کی وجوہات کو جان کر ہم کون کون سے ایسے پریکاشنری میجرز اڈاپٹ کر سکتے ہیں جس سے ہم مسل کریمپ کی چوٹ سے بچ سکتے ہیں یا اس کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل مسل کریمپس کو جاننا ضروری ہے۔ ایک یا ایک سے زیادہ مسل کا غیر ارادی طور پر سکڑنا مسل کریمپس کہلاتا ہے۔ غیر ارادی طور سے مراد یہ کہ ایک تو آپ اپنی مرضی سے کسی مسل کو، ہاتھ کے مسل کو، پاؤں کے مسل کو، ٹانگوں کے مسلس کو آپ پھیلاتے ہیں یا سکیڑتے ہیں، لیکن جب مسل کریمپ ہوتا ہے تو تب مسل خود بخود سکڑ جاتا ہے۔ اس میں ہمارے عضلات کی سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ عضلات فکس ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ، یعنی وہ نہ تو وہ پھیل سکتے ہیں نہ سکڑ سکتے ہیں۔ ارادی طور پر اگر ہم ان کو پھیلانا چاہیں بھی تو وہ نہیں پھیلتے۔ کام کرنے کے دوران اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ پیٹ میں ایک دم سے درد ہو جانا، معدے کے مسل کا سکڑ جانا یا رک جانا، بازوؤں کے مسلس، بائیسیپ اور ٹرائیسیپ مسل وغیرہ کا کام نہ کرنا۔ یہ بائیسیپ مسلس آپ کے شولڈر سے آگے کہنی تک جو آپ کا ہڈی ہے، ہیمرس ہڈی ہے، سامنے والے مسل جو ہیں یہ بائیسیپ مسلز ہیں، اور اسی طرح ایلبو کی بیک سائڈ اور شولڈر تک جو آپ کا دوسرا مسل ہے اس کو ٹرائیسیپ مسلز کہتے ہیں۔ آگے ان کی کچھ وجوہات ہیں کہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ ایسا ہوتا ہے۔ کازز آف مسل کریمپس: انٹینسو ایکسرسائز۔ جسمانی فٹنس کی بہتری کے لیے اگر ایک ایتھلیٹ 20 کلومیٹر کے حساب سے دوڑ لگاتا ہے لیکن پھر 30 کلومیٹر کے حساب سے دوڑ لگاتا ہے جس میں اس کا جسم مسل کریمپ کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ اس کی رفتار میں طاقت سے زیادہ دوڑایا جا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ زیادہ شدت کی کوئی بھی سرگرمی کریں گے جس کے لیے آپ کی باڈی تیار نہیں ہے، یا آپ اس طرح کا آپ نے وارم اپ کول ڈاؤن نہیں کیا ہوا وارم اپ، تو پھر آپ کے مسل کریمپس ہو سکتے ہیں۔ ورزش کا دورانیہ، ڈیوریشن آف ایکسرسائز، ورزش کا دورانیہ جسمانی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے پہلے دن سے آخری دن تک ٹریننگ کے دورانیہ کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اگر پہلے دن ورزش 10 منٹ کی جائے اور دوسرے دن 20 اور 30 منٹ کے حساب سے، تو مسل میں تھکاوٹ آ جائے گی، اس سے مسلس کریمپ ہو جائے گا۔ اس میں ہم کچھ ٹریننگ کے پرنسپلز ہیں، ہم پروگریشن پرنسپل کو اڈاپٹ کرتے ہیں، جس میں آہستہ آہستہ ہم ویٹ کو بڑھاتے ہیں یا ٹائم کو بڑھاتے ہیں یا ڈیوریشن کو بڑھاتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ بائلو جو یونان کا بندہ تھا، اس نے پہلے دن سے بچھڑے کو اٹھانا شروع کیا، اور جب وہ پورا بیل بن گیا تو تب بھی اس کو وہ اٹھا لیتا تھا، کیونکہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو اٹھاتا تھا، اور جو تھوڑا تھوڑا اس کے جسم میں ڈیلی بیسس پہ وزن میں اضافہ ہو رہا تھا، وہ پروگریشن کے اصول کے مطابق آہستہ آہستہ وہ بائلو بھی وہ وزن زیادہ بڑھتا ہوا اٹھا رہا تھا۔ لو انرجی لیول: اگر آپ حد سے زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں انرجی کا لیول کم ہو جاتا ہے، جس سے فٹیک ہو جاتی ہے، اور عضلات جو ہیں اپنی اصل طاقت پر نہیں پھیل پاتے، اتنا نہیں وہ پھیل سکتے، جس کی وجہ سے مسل کریمپ ہو جاتا ہے۔ مینٹل پریپریشن: جہاں ہم وارم اپ کرتے ہیں وہاں جسمانی ٹمپریچر کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ سائیکولوجیکلی اور مینٹلی طور پر بھی اپنے جسم کو، مسلز کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ جو ایکٹیویٹی آپ نے آگے کرنی ہوتی ہے، جو کھیل آپ نے کھیلنا ہوتا ہے، جو ٹریننگ سیشن آپ نے کرنا ہوتا ہے، جب اب ذہنی طور پر بھی آپ تیار نہ ہوں تو پھر بھی مسل
क्रैम्प्स हो सकते हैं। वेदर कंडीशन, अब मौसम का बड़ा अमल दखल है। बाज़ गर्मियों में जून के महीने में क्रिकेट खेल रहे हों तो मौसम की शिद्दत खिलाड़ी के लिए चैलेंज कंडीशन होती है जो उज़लात को मुतासर करती है। जब इंतहाई शिद्दत से काम लिया जाए तो मसल पर बुरे असरात पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी, दोनों सूरतों में जो टेम्परेचर है या जो एनवायरनमेंट की कंडीशन है या वेदर है, ये इफ़ेक्ट करता है खिलाड़ी की कारकर्दगी को और उनके मसल्स को। और अगर गर्मी में ज़्यादा आप काम करते हैं तो उससे मसल क्रैम्प्स हो सकता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। यूज़ ऑफ मसल्स अगेन एंड अगेन, अगर आप मुसलसल मसल को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं या आपके मसल बार बार सिकुड़ रहे हैं और फैल रहे हैं तो इस सारे अमल के दौरान मसल की तवानाई सरफ हो जाती है और मसल पर इसके बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स होने का ख़दशा होता है। जेनेटिकली इफेक्ट, मौरूसी असरात, बाज़ विरासत से भी इंसानी जिस्म पर बुरी तरह असरअंदाज होती है। जैसे बाजू टांगों के मसल का सिकुड़ जाने की वजह से बाजुओं टांगों को मुकम्मल तौर पर सीधा ना होना और इस तरह जिस्म में बाकी अज़ा जेनेटिक इफेक्ट की वजह से मसल क्रैम्प का ज़ाहिर होना। यानी ये चीज़ें कुछ चीज़ें जेनेटिकली भी हैं और जिनकी वजह से अब मसल क्रैम्प हो सकता है। डिहाइड्रेशन, ये सबसे बड़ी वजह है जी। स्पोर्ट्स में जिनमें बहुत ज़्यादा पसीना निकलने से नमकियात की कमी हो जाती है, ख़ास तौर पर सोडियम का अखराज मसल क्रैम्प्स की बड़ी वजह बनता है। यूज़ ऑफ अल्कोहल, जब अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है तो इंसानी जिस्म में पानी की कमी वाक़ई हो जाती है। जैसा कि अल्कोहल इंसानी जिस्म से पानी की बहुत बड़ी मिकदार जज़ब कर लेता है, जिससे मसल में लचक की कमी हो जाती है और इंसानी जिस्म मसल क्रैम्प्स का शिकार हो जाता है। अल्कोहल के इस्तेमाल से भी मसल क्रैम्प्स हो सकता है। प्रेशर ऑन मसल्स, मसल पर दबाव हो, मसल एक हाथ से ज़्यादा दबाव बर्दाश्त करने की हद होती है। अगर इससे ज़्यादा हम उस मसल पर दबाव डालेंगे तो लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाएगा, जिससे मसल में थकावट महसूस की जाएगी, थकावट का शिकार हो जाएंगे और थकावट ही मसल में मसल क्रैम्प्स की वजह बन सकती है। आगे हैं जी हमारे साइंस कि इनकी अलामात क्या हैं। अगर आप एज ए कोच, एज ए ट्रेनर, एज ए लेक्चर फिज़िकल एजुकेशन या तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर अगर आप कोई इवेंट करवा रहे हैं या कोई मैनेज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन कौन कौन सी अलामात है जिसकी वजह से हम महसूस कर सकें, जब हम ये जांच सकें कि खिलाड़ी जो है वो मसल क्रैम्प्स का शिकार है। पेन इन मसल्स, मसल में पेन होना शुरू हो जाती है। मसल का इकट्ठा हो जाना यानी पुल इन मसल्स, मसल पुल हो जाता है या मसल में पेन होना शुरू हो जाती है। लैक इन फ्लेक्सिबिलिटी, ज़ाहिर सी बात है मसल तो फिक्स हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं हो सकती उसमें, तो फिर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। अगर ज़्यादा शदीद नोयत का है तो फिर तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी ही नहीं, लेकिन अगर नॉर्मल है तो फिर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। डिहाइड्रेशन, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से ही मसल क्रैम्प हुआ तो पानी की कमी वाक़ई हो जाएगी जिस्म में। इंजरी, उज़लात का टूट जाना, इंसानी जिस्म के उज़लात बार बार सिकुड़ते फैलते हैं तो इस दौरान मसल पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, जिससे उज़लात के बारीक रेशे टूटते हैं, जिनको जुड़ने के अमल को ज़ाहिर सी बात आपको पता है कि रिकवरी कहते हैं। रेस्ट या मुनासिब वक्फा की ज़रूरत होती है, इस तरह उज़लात को मजबूती फराहम करती है, लेकिन मसल क्रैम्प्स का शिकार ज़रूर हो जाते हैं। यानी अगर आप इस बेशक रेस्ट एंड रिकवरी में भी वो ठीक भी हो जाएं, लेकिन फिर भी अगर उज़लात पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो उज़लात टूटना शुरू हो जाएंगे। सोरनेस यानी मुतलका जगह का वो ऐसे लगेगी आपको जैसे सूजी हुई है। जो मसल क्रैम्प हो जाते हैं वो मसल फटीक की वजह से सख्त हो जाते हैं, इनमें लचक ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से मुतलका जगह जो है ना वो आपको उभरी हुई लगेगी, ऐसे लगेगी जैसे वहाँ पे सूजन है। तो ये भी एक अलामत है। जिस्मानी कारकर्दगी में कमी, लैक ऑफ परफॉर्मेंस में कमी हो जाएगी। जब मसल क्रैम्प होगा तो खिलाड़ी की जो कारकर्दगी है वो कम हो जाएगी, उसे कुछ रेस्ट दिया जाए ताकि वो रिकवर कर सके। लैक ऑफ मिनरल्स, नमकियात की कमी हो जाएगी। नमकियात की कमी कैसे? अगर एक्सेस ऑफ आपके जो स्वीटिंग है
पसीना का ज़्यादा आने की वजह से, सोडियम की कमी की वजह से अगर आपको मसल्स क्रैम्प हो गया तो ज़ाहिर सी बात है आपके जिस्म में इन नमकियात की कमी हो जाएगी। अब ये है कि हम कैसे कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स इस्तेमाल करें, उनको अडॉप्ट करें, कि किन एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करते हुए हम मसल क्रैम्प से ख़ुद बच सकते हैं और अपने खिलाड़ियों को बचा सकते हैं। तो उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल है वार्म अप। तो जब आप मुनासिब वार्म अप करेंगे तो खिलाड़ी जहाँ जिस्मानी तौर पर भी तैयार होगा, उसके साथ साथ वो ज़हनी तौर पर भी तैयार होगा और मसल्स क्रैम्प्स के चांसेस कम से कम होंगे। कूल डाउन, जब आपकी खेल का, ट्रेनिंग का, मैच का अख्ताम हो जाए तो कूल डाउन एक्टिविटीज़ भी की जाएं ताकि जो आपके मसल्स हैं वो प्रॉपरली आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल हालत में आएँ, ना कि अचानक से हम उनको काम करते छोड़ दें जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स हो सकता है। हाइड्रेशन, खेल के दौरान जहाँ भी पानी का वक्फा हो या वैसे भी, तो पानी का मुनासिब इस्तेमाल खेल की ज़रूरत और शिद्दत और खिलाड़ी की बॉडी और उसके वर्क के हिसाब से जो पानी की ज़रूरत जो मुनासिब मुहैया किया जाए। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल किया जाए मौसम के मुताबिक। अगर ज़्यादा गर्मी है तो पानी की कमी ना हो जिसकी वजह हम बच सकते हैं मसल क्रैम्प से। अगर पानी की कमी हो गई तो फिर हो सकता है कि हमारे खिलाड़ी को मसल्स क्रैम्प्स हो जाए। कार्बोहाइड्रेट्स, ये बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट हमारे जिस्म को सबसे ज़्यादा तवानाई मुहैया करते हैं, सबसे जल्दी और आसानी से हमारे जिस्म में जज़ब होते हैं। इसलिए खेल के दौरान भी लिया जा सकता है ताकि मसल क्रैम्प से बचा जाए, यानी आपकी एनर्जी का जो लेवल है वो लो ना हो। अल्कोहल के इस्तेमाल से बचा जाए क्योंकि अल्कोहल आपके जिस्म से बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी जज़ब कर लेता है, तो इससे जिस्म में डिहाइड्रेशन होकर मसल क्रैम्प्स हो जाता है। इंटेंसिव एक्सरसाइज से परहेज़ किया जाए, बहुत ज़्यादा शिद्दत की एक्सरसाइज ना की जाए बल्कि आपकी बॉडी के मुताबिक और जितनी ट्रेनिंग आप कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अगर पहले दिन 5 मिनट की, अगले दिन 7, अगले दिन 9, अगले दिन 10, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली प्रोग्रेशन के असूल को अडॉप्ट करते हुए बढ़ाएं तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर पहले दिन ही जाके आप कहें कि मैंने जी 100 kg वेट उठाना है, पहले दिन ही मैंने 4 किलोमीटर भागना है, तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो आपको जिस्म के लिए जहाँ मसल क्रैम्प्स होगी वहाँ और भी डिफरेंट किस्म की इंजरीज़ का सबब बन सकती हैं। ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, ये भी वही है कि एक्सरसाइज का दौरानिया कम रखें ताकि आप किसी किस्म की इंजरी का शिकार ना हो, ना ही कोई ओवर यूज़ इंजरीज़ हो। यूज़ ऑफ मिनरल एंड मसाज, मिनरल्स का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तुरश अशिया का इस्तेमाल करें ताकि जिस्म में मुनासिब मिकदार में इनकी मिकदार रहे ताकि मसल क्रैम्प्स ना हो। और मसाज भी करें जिससे जिस्म गर्म हो जाता है और मसल में लचक पैदा हो जाती है, जिससे क्रैम्प से बचा जा सकता है। और जिस्म में क्रैम्प पड़ जाए तो मुतासर जगहों पर भी मसाज करके क्रैम्प से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आए तो उसको ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो किसी की तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे नंबर पे भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।